Good evening and welcome on board the Election Express. We are broadcasting tonight from a village called Pawarwadi. This is in the constituency of Baramati, Sharad Pawar's fiefdom, a stronghold of the NCP. And we've got over here villages. We've got villagers from several nearby villages. Thank you all so much for joining us on this broadcast. आप सभी ने हमें यहाँ पे अपने गांव में आने की और यहाँ पे शूट करने की इजाज़त दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे दर्शकों को बता दें कि आप लोग पसंद किसको करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एनसीपी का गढ़ है, पवार साहब का गढ़ है। सबसे पहले ये बताइए कि आप में से एनसीपी के कितने सपोर्टर्स हैं? मतलब काफी बड़ा तबका जो है, सबसे बड़ा तबका एनसीपी के सपोर्टर्स का है। ये बताइए कि जो महायुति है बीजेपी, शिवसेना, एसएसएस की, उसको कितने लोग सपोर्ट करते हैं? अच्छा, ये भी बताइए कि जो मनसे है राज ठाकरे की एमएनएस, उसको कितने लोग सपोर्ट करते हैं? कुछ लोग हैं। अच्छा, वहां पे भी एक छोटा सा बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है राज ठाकरे के लिए। ये अच्छा, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का कोई दखल है कि नहीं? आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं वहां पे, मैं कुछ हाथ देख सकता हूँ। 2 लोग यहाँ पे आम आदमी पार्टी के। चलिए, तो एहसास हो गया कि हमारे ऑडियंस में किस तरह के और किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग बैठे हैं। आई वांट टू बिगिन दिस ब्रॉडकास्ट टुनाइट बाय प्लेइंग आउट अ शॉकिंग रिपोर्ट about a comment made by Ajit Pawar, Sharad Pawar's nephew, caught on camera at a small closed-door meeting at a village not very far from where we are tonight. In this recording, Ajit Pawar tells an ex-serviceman that he will cut off water supply to his village unless the villagers voted for the NCP, for his sister Supriya Sule. He's the bully of Baramati, the inheritor of Sharad Pawar's mantle, a man who invokes fear and awe in equal measure across Western Maharashtra. Let's take a look at this report that we filed tonight on the bully of Baramati. Baramati is a stronghold of the NCP and in particular of the Pawar family. While Uncle Sharad now mostly busies himself with politicking at a national level, it is nephew Ajit Pawar who keeps Baramati under his thumb. In the run-up to polling day, Deputy Chief Minister Ajit Pawar was allegedly filmed on a cell phone threatening to cut off water supply if locals don't vote for NCP candidate Supriya Sule. While the faces in the video are not visible as it's too dark, the audio is clear. The Deputy Chief Minister's open threat underlines the Pawar brand of politics. A thirsty village is promised water in exchange of votes. We believe that the young voter who dared to question Ajit Pawar has now gone missing. His mysterious disappearance most probably linked to his verbal duel with the powerful NCP leader. NCP opponents were also quick to jump at the opportunity to gain some political leverage against the Pawars. I have come to this police station, Vadgaon Nimbalkar police station, to lodge complaint against Ajit Pawar. सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लोगों ने बनावटगिरी करके कुछ वीडियो है जिसमें अजीत दादा की आवाज़ है, इस तरह से लोग दावा कर रहे हैं। ये पूरी तरह से बनावट करके बदनाम करने का कारस्थान किया गया है और पार्टी के माध्यम से जिन लोगों ने बदनामी करने का एक कारस्थान किया है उन पे कार्रवाई करने की शुरुआत हमने की है। This is not the first time that Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has been involved in a controversy. On 29th October 2013, Ajit Pawar said that incidents of rape can be stopped if the genitals of rapists are cut off. मी तर मध्ये म्हणलं की परत त्याचा बंदोबस्तच केला पाहिजे, त्याला कापूनच टाकलं पाहिजे. परवा उपोषणाला बसले होते. On April 7, 2013, referring to a hunger strike undertaken by a drought-affected farmer, Pawar said, "If there's no water in the dam, how can we release it? Should we urinate into it? If there's no water to drink, even urination is not possible." In September
September 2012, there were accusations against him of misappropriation of funds amounting to 7,000 crore rupees in what came to be known as the irrigation scam. अगर इस तरह से कोई मतदाताओं को धमकाता है तो निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि अजीत पवार साहब को विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई, ऐसा लगता है। Ajit Pawar learned his trade from Sharad Pawar, and beginning 2004, when the Congress-NCP coalition returned to power, he began flexing his clout. Having strengthened his position in the powerful sugar lobby and cooperatives of Maharashtra, controlled by the NCP, Ajit became a cabinet minister in successive Congress governments led by Sushil Kumar Shinde and Vilas Rao Deshmukh. In Baramati, Ajit's control is near total, and of late he's been positioning himself to make a bid for the chief minister's post in Mumbai. Governance in Maharashtra under the NCP has been what we saw yesterday's issue about Ajit Pawar breaking the model code of conduct. Even the party cadre is sensing the changing times and preparing for the time when Ajit takes over. But for now, in Baramati, the Election Commission has asked for a report from local collector over the alleged threat to the young voter by Ajit Pawar. But with elections over for this seat, the fate of the candidates is already sealed, and whatever bullying Ajit Pawar had to do has already taken effect. Bureau Report for Election Express. That was the bully of Baramati. Has a knack of getting into trouble, one controversy after another. I want to understand from the NCP supporters कि अजीत पवार का जो बयान है कि वोट नहीं दिया तो हम पानी की सप्लाई काट देंगे, ये दादागिरी करके कोई वोट मांगता है? क्या कर रही है आप लोगों की पार्टी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा दादा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। दादा तो पानी के वास्ते ही बारामती के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, पर ये तो एकदम दादागिरी है ना कि आपने वोट नहीं, आपका दादा क्या बोला? किसने बोला आपको? किसने बोला? हमने टेप सुना, टेप चलाया चैनल पे। टेप तो झूठा हो सकता है। टेप कैसे झूठा हो सकता है? आप भी कभी ऐसा बोल नहीं सकते। डीसीएम ऐसा कभी बोल नहीं सकते। पहले एक आदमी यहाँ पे बब्बन बैठा था भूख हड़ताल पे, उसने बोला कि पानी नहीं है तो उन्होंने बोला क्या मैं पेशाब करूं तालाब में आके? क्या भाषा बोलता है रे नेता? इधर तो कोई बोला नहीं, इधर तो कोई बोला नहीं। बारामती में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दादा का कि वो झूठ बोलता है। पर ये तो कैमरे पे सबने सुना। ये जो है किसी की आवाज कोई भी निकाल सकता है। ऐसा झूठ किसी की कौन? मैं भी किसी की आवाज निकाल सकता हूँ ना। दादा की आवाज निकाल सकते हैं? हाँ, ये लोग कह रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे? क्योंकि दादा आपका एक के बाद एक गलत बयान देता है। मोदी साहब आप था आमदार साहब के साथ, अब क्या किया? नहीं, हम लोग ये पूछ रहे हैं। हाँ मैं बोलता हूँ, हमारा एक जिराइज बाग है सुपा परगाना करके, उधर 8 साल हो गए कैनल को पानी आ रहा है। लोगों का बहुत अच्छा खेती का काम चालू है। 8 साल हो गए, गन्ने की खेती अच्छी चालू है। थमा नहीं, पर यहाँ धमकी दे रहा है, कैमरे पे पकड़ा गया। मैं ये बीजेपी शिवसेना के सपोर्टर से पूछना चाहता हूँ, ये बोलते हैं कि कोई भी आवाज निकाल सकता है अजीत पवार की, कोई गारंटी नहीं कि ये दादा है कि नहीं। अब उन्होंने वो बोल दिया है, इसलिए तो कैमरे पे आ गए ना। नॉट ओनली दिस बट ही हैड बुरी आदत है उनको। क्या बुरी आदत है? तो आप तो सब जानते हैं। नहीं बताइए ना। आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं तो जानते हैं कि ऐसे वो बोल सकते हैं। वो ऐसे बोलते हैं, उनकी फितरत ही ऐसी। जो अभी मीडिया में दिखाई जा रहा है वो क्या झूठ है क्या? वो तो उन्होंने ही बोला है ना। वो शेटफल के सभा में जो बोला था वही भी उन्होंने ही बोला था ना, बिशप मैं करूंगा और पानी भेजूंगा। मेरा एक ऐसा आरोप है उन पे कि यहाँ के जो नेता है वो यहाँ की जनता को अपना गुलाम समझती है और यहाँ के जो एनसीपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ की जनता को उल्लू समझती है और उल्लू बनाती है। ये बड़ा संगीन आरोप लगाया कि आप लोग राजा समझते हो जनता को बेवकूफ। झूठ समझे, झूठ बात है, वो सब बात झूठ है। हमारा नेता भैया अच्छा है, अजीत पवार हमारा नेता अच्छा है, वो सब आदमी झूठ बोलता है। वो नहीं, पर ये तो हकीकत है कि अजीत पवार कैमरे पे है, कैमरे पे पकड़ा गया, बोला जब गरीब किसान बोल रहा था कि मेरे पास पीने को पानी नहीं है,
पानी मांगता है तो अजीत पवार ने बोला क्या मैं तालाब में जाके पेशाब करूं? क्या ये शोभा देता है एक नेता को ऐसे बोलते? वो बोला नहीं, कभी नहीं वो ऐसा बोलता। अरे कैमरे पे पकड़ा गया बॉस। कभी नहीं, जो झूठ है वो बोलता है ना, वो सब झूठ है। वो आरोप लगा रहे भाई साहब कि एनसीपी के नेता जहाँ की जनता को ठग रहे हैं, बेवकूफ। नहीं, पूरा आरोप तो कोई कर सकता है, कोई गलत हो सकता है, तो दादा ने उसके ऊपर माफी दिलगिरी अरे ऐसा बयान ही क्यों दो जिसके लिए माफी मांगनी? आदमी हो सकता है, लेकिन कभी लोगों को खेद देने के लिए वो कभी स्टेटमेंट नहीं करते। नहीं, एक सेकंड, मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एनसीपी के जो कार्यकर्ता है उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले कितने साल से पवार साहब और उनकी सत्ता है यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में और बारामती में? उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने साल से उनकी सत्ता है? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि पवार साहब पे हमें भरोसा है, पवार साहब इस तरह के। मेरा सवाल क्या है उसका जवाब दो ना। उनसे नहीं, आपको नहीं मालूम कितने साल से सत्ता है? तो पिछले 40 साल से वो राज कर रहे हैं, फिर भी यहाँ की जनता पानी करके मर रही है। पानी करके मर रही है यहाँ की जनता। कौन जवाब देगा? बोलिए। क्योंकि यहाँ की जनता परेशान है। गरीब जो अमीर किसान है वो अमीर होता है, गरीब किसान पिस रहा है। 2 मिनट सुनो। पवार साहब 40 साल पानी नहीं देता बोले, उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र पूछो। सुनो साहब, पवार साहब ने कभी 2 मिनट, पवार साहब ने कभी किसी का बुरा किया नहीं। पानी 8 साल हो गए, हमारे उधर भी पानी आ रहा है। सर जी सुनो, इधर भी पानी 4 महीने में आएगा। इधर पवार साहब, अजीत पवार बहुत काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। ओके, यू नो बारामती is an oasis. When Sharad Pawar started his political career, it used to be a sleepy old village. When we visited the town today, it was a bustling town. You had Domino's, you had McDonald's, you had Adidas showrooms. It was like any other city that you and I live in. Baramati has been developed. There are colleges, educational institutes. There's a massive medical college being constructed. There's a Vespa factory. Industry coming in from all over to set up base in Baramati because of the presence of Sharad Pawar. But my colleague Simi Pasha traveled around Baramati to find out that Baramati is just an oasis. All around is a high level of impoverishment, a high level of disenchantment. Just off Baramati, people don't even have water to drink or water to irrigate their fields. Here is Simi Pasha's report tonight for the Election Express. Baramati is known as much for its Nandi idol as it is for Sharad Pawar. The NCP strongman has ruled the city and its surrounding villages for almost half a century now. This town, about 100 kilometers from Pune, has had a history of looking up to strongmen. It was a fiefdom of Shivaji's grandfather. It was ruled by Shivaji. In the 18th century, there was Babuji Nayak, whose mansion still exists. And in independent India, there has been Sharad Pawar. First as an MLA and then as an MP. Union Minister and powerhouse of Delhi politics. Pawar is credited with bringing industry to Baramati, from steel processing to wine making, in which he himself is a shareholder. Then there is Italian auto giant Piaggio among the big plants that have been set up in association with the Maharashtra Industrial Development Corporation. But while Baramati town and its industrial suburbs are booming, the villages surrounding the town are paying the price, sucked dry to feed the prosperity of Baramati town. 70-year-old Sukubai is angry with the political class for ignoring the needs of her village for the last 50 years, denying them access to something as basic as water. पाण्याची सोय पहिल्यापासूनच नाही बरं का. नदीला पाणी होतं तेव्हा पाणी भेटत होतं, पण आता पाणी भेटत नाही. 3-4 वर्ष झालं. काय सोय नाही, काय सोय आहे तेव्हा. कुठं विहिरी पाडल्या तर पाणी नाही लागत. खराट झार पाणी, नदीला पाडल्या विहिरी तरी खराटच पाणी. नाझऱ्याच्या धरणाचं पाणी येते आम्हाला दिसाड.
नाही तर 2-2, 3-3 दिवसाला पाणी नाही. मग जायचं कुठं बी पाण्याला आणायचं पाणी जाऊन. Sukubai's family, along with her neighbors, use these tanks to collect water. They have to do with this one tank for close to a week. हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है. हमारे गांव में सभी लोगों को पानी लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, यानी कि बीर वैसा कालवा वगैरह वहाँ से लाने पड़ता है. हमारे यहाँ बहुत ही मोटी प्रॉब्लम है पानी की. यहाँ पीने के लिए भी लोगों को पानी नहीं मिलता. तो फिर खेत का तो बाद में ही, उसका तो कुछ सवाल ही नहीं. And this is a problem that is plaguing almost 22 villages in Baramati. There is no government pipeline that has been laid down and no alternate arrangements made. Women from these villages have to travel long distances to quench the thirst of infants back home. They travel in groups, spending at least 6 hours a day in just fetching water. यहाँ पानी नहीं मिलता है, यहाँ खारा पानी मिलता है बहुत. 2-2, 3-3 दिन यहाँ पानी नहीं मिलता है. पीने का भी नहीं और कोई कैसा नहीं पानी. तो कैसे काम करते हैं आप? ऐसे ही कहा पानी वहाँ होता है, जाते बहुत दूर दूर से और लाते हैं पाणी. यहाँ अडचण भरू देत नाही तिथं कुणी. एक टाकीला येते, नंबरला असते तिथं गर्दी. हो, पाण्याचं टँकर येत नाही आमच्या इथं. कुडाला बी कॅलेनचं असं हो, म्हणजे पाणीच नाही मिळत आता. लय लांबून आणायला लागतंय पाणी. ऐसा कैसा भी गंदा पानी पीते, गंदा कॅलेनचा ह्याचं गंदा बहुत बाऊ रहते, सब रहते, मकोड़ा रहते, वो पड़ते हम पीना. Despite massive protests by locals demanding clean water from their elected representatives, their demands have not been met with. Opposition leaders claim that the Pawar family has only served itself. शरद पवार वैसे तो सब लोग जो बोलते हैं कि रिच पॉलिटिशियन है, तो सबका मानना जो है वो सही है. शरद पवार ने खुद का बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, मगर यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी बोले तो बारामती तहसील के अंदर, बारामती असेंबली सीट के अंदर देखा जाए, लोकसभा सीट के अंदर पुरंदर में ज्यादातर इलाका पानी के लिए तरस रहा है. बारामती उनका खुद का जो असेंबली है, वहाँ से 70% इलाका पानी के लिए तरस रहा है. NCP Chief Sharad Pawar and his MP daughter Supriya Sule have both declared assets worth 32 crore rupees each this election season. Pawar's own personal wealth has multiplied close to 400 times since 2009. Even as the NCP's first family prospers, people in Baramati are being denied access to basic amenities like clean drinking water. Locals here don't want a share in Pawar's ocean of wealth, only a drop to survive. With Kashif Siddiqui in Baramati, Simi Pasha for the Election Express. That report brings out how Baramati has been developed at the cost of the neighboring villages. हमारी रिपोर्ट में निकल के आया कि किस तरीके से बारामती शहर में तो सब सुविधा है, बिजली भी है, पानी भी है, लेकिन जो इर्द गिर्द के गांव हैं वहां पर ना पीने को पानी है, ना खेती के लिए पानी है. क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई है कि पवार साहब ने बारामती को तो विकास किया लेकिन इर्द गिर्द के इलाकों का नहीं? जैसे बीजेपी राम मंदिर का प्रश्न लेके हर इलेक्शन लड़ती है, उसी तरह एनसीपी हो या कांग्रेस हो, ये विकास का नारा लगाती है. पानी पीने के लिए देंगी, रास्ते देगी और ऐसे बहुत बातें करके ये हर इलेक्शन में अपना वोट चलाती है. जैसे बीजेपी राम मंदिर का वोट चलाती है, उसी तरह कांग्रेस और एनसीपी इसी तरह का काम कर. बताइए, आपको लगता है कि पवार साहब ने बारामती का विकास किया, बाकी लोगों को भूल गए? शरद पवार ने ना जो जनता है बारामती की उसको पानी पीने के लिए पानी देता है, लेकिन खेती के लिए पानी नहीं देता है. और आपको लगता है कि जो पानी है वो जाता है बड़ी शुगर मिल्स के लिए? गन्ने के जो मिल्स हैं उनके पास तो पानी है, लेकिन किसानों के पास पानी नहीं. जो गन्ने का खेती है बारामती को, जो बारामती का खेती है, बारामती वो 22 गाय है, उसमें उसको पानी नहीं मिलता है थोड़ा भी. वो पीने के लिए पानी देते हैं लेकिन वो खेती के लिए कुछ पानी नहीं. भाई अच्छा, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं मुझे हाथ ऊपर करके बताएं कि किन लोगों को लगता है कि पवार साहब ने पूरे बारामती इलाके का बराबर से विकास किया है? कितनों को लगता है? दिखाइए. बहुत कम. कितनों को लगता है कि जो विकास है वो आधा अधूरा है? बारामती का तो हुआ है लेकिन बाकियों का नहीं हुआ है. हटिए. आधा हुआ है, आधा. 22 गांवों में बिल्कुल पानी नहीं. आधा. किसकी गलती है? इसकी शासन की गलती है. आपको लगता है कि विकास में भेदभाव है? बारामती शहर का तो विकास हुआ अच्छे से, बाकियों का नहीं हुआ?
बारामती लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इंडस्ट्री के डेवलप फोकस करते हैं, एग्री के लिए कोई भी फोकस नहीं करता, नहीं पावर देता है, नहीं पानी देता है, और नहीं रास्ता भी ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन किन लोगों को लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं वो गलत है? आप लोगों को लगता है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत है? मुझे तो ये आरोप बिल्कुल ही गलत लगता है। आज मोरे सर भी इधर जो अपोजिट में बैठे, वो भी इधर एमएलए बैठे थे, उनसे ही पूछो कि पवार साहब ने 67 से आज तक बहुत बड़े डेवलपमेंट बारामती और ये 22 जो गांव है, ठीक है, पानी का ये जो है, मेरा ऐसा कहना है कि 2 साल से थोड़ा सूखा पड़ा है और सभी नाले जो होते उनका नाला बिल्डिंग और सब कुछ इधर एनसीपी के माध्यम से किया है। आपको लग रहा है कि काम हो रहा है लेकिन सूखा है इसलिए पानी की कमी नाही आम्हाला 22 गावाला अजिबात पाणी नाही, आम्हाला टँकरचं पाणी आहे 2-2 दिवस। देवळगावला कामाला जातोय आम्ही, इथं आमचे पोरं लेकरं आम्हाला कळानात। 40 वर्षे की पाणी 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 करून मरायची पाळी आलेली, पाण्याची पहिला प्रश्न सोडवा आणि पूर्ण करावा। ये बहुत आप इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं। एनसीपी के लोगों को जवाब देना होगा कि पानी जो है वो गन्ने के मिलों के लिए है, पानी अमीर किसानों के लिए है, गरीब किसान के लिए पानी नहीं। जो शरद पवार ने डेवलपमेंट किया, उन्हें 63 गांव थे, उसमें से पहले 22, बाद में 21 को 42 हो गए। बचे हुए गांव का प्रॉब्लम पानी का ऐसा है, 2 योजना है उसके लिए, एक जाना जिसका, दूसरा पुरंदर उत्तर सिंचन। उसमें से प्रॉब्लम ये है, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो वाटर फिल्टर खड़कवासला से जो 12 TMC पानी दिया था कॉर्पोरेशन के मंजूर करके, उसमें से प्रॉब्लम ऐसा कि 4 TMC पानी है। अरे प्रॉब्लम क्या हो गया? 40 साल से यहाँ पे देना चाहिए ना पानी। प्रॉब्लम बता रहा हूँ, पानी क्यों कम आता है? आप सुना करो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो पानी आ रहा है, पानी आने इसका मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन बारिश कम हो गया है तो पानी फ्री जो स्टोरेज कैपेसिटी खड़कवासला उसमें कम आएगा तो water clearly is a big issue, the biggest issue for the farmers over here, and this is something that they crave for, they depend on, their life virtually depends on it. We've looked so far at what's happening in Baramati, but the neighboring constituencies of Mada and Sholapur feel completely neglected. While the roads of Baramati are good, there are pakka buildings over here in Mada, the farmers feel neglected. They feel that Sharad Pawar has been taking care of his own area at the expense of areas around Baramati. Remember, in Amethi we saw how there was complete neglect. There was no development at all, despite the Gandhi family being in power over there for several elections now. Here we see a contrast. We see a VVIP constituency in the real term, in the real meaning of the term VVIP constituency, but everyone else feels left out of the Pawar party. A national and private bank ATM around every corner, automobile showrooms all across the city, and multi-story newly constructed apartment complexes. That is the new face of the city of Baramati. Many of its people thankful to the Pawar family for much of their fortunes. The 4-hour drive to Baramati from the nearest airport and district headquarter of Pune was quite comfortable given the state of roads, but the city itself seems like an oasis in the desert, with clean streets, wide roads and civic amenities that may leave big metropolis a bit jealous of this town of 1.30 lakh people. तो बारामती में वो पवार साहब है तो अजीत दादा है, ये ओनली बारामती के लिए काम नहीं करते, तो बारामती में जो करते हैं वो पूरा जिला में, पूरा स्टेट में उसके वो क्या काम है, कैसा काम है, वो पूरा टोटल एरिया में कर देते हैं. The adjoining constituency of Mada disagrees. In 2009, 64% of voters in the newly formed constituency of Mada elected Sharad Pawar to represent them in Lok Sabha, hoping that he would do for them the wonders that he did for Baramati. 5 years on, most of them have been left disappointed. Case in point, the state of National Highway, where the long delayed widening work was left or is in a bad condition. A sharp contrast to Baramati's road, but that's not all. बारामतीचा विकास झाला, त्या अर्थाने जे माड्यातल्या सगळ्या लोकांनी त्यांना निवडून दिलं, त्या दृष्टिकोनातून फलटणमध्ये माडामध्ये विकास झालेला नाही. त्यामुळे आजकाल लोक
नाराज आहे त्यांच्यावर. इथं पवारसाहेब कृषी मंत्री झाले असं वाटत होतं लोकांना की बारामतीचा जसा विकास झाला तसा विकास इथं पण व्हायला पाहिजे होता. ह्या दृष्टीनं लोकांनी त्यांना भरघोस मताने दिले निवडून 2009 मध्ये, पण तसं काही झालेलं नाही. People of Mada feel that the constituency has been given a stepchild treatment, some accusing the Pawars of bias. हमारे माड़ा मतदार संघ लोगों को लगातार लग रहा था कि जैसे बारामती डेवलप हुआ है वैसे माड़ा मतदार संघ भी डेवलप हो जाएगा. उधर को जैसे उधर बहुत फैक्ट्री है, इधर माड़ा में कुछ न कुछ हो जाएगा. उधर को जो हमारे वीरधरण का जो पानी आता है ना वो माड़ा मतदार संघ में कम आता है और बारामती मतदार संघ में ज़्यादा जाता है. उधर का कैनल जो है ना वो हमेशा चल रहता है. उधर पानी की कुछ कमतरता ही नहीं रहती, लेकिन इधर कभी पानी आता है कभी नहीं आता है. पीने के पानी का बहुत प्रॉब्लम है इधर, लेकिन बारामती में जितना ही उतना ही. बारामती में पीने का पानी हमेशा रहता है, लेकिन माड़ा मतदार संघ में कुछ नहीं रहता है. बिजली कम रहती है, उधर बिजली ज़्यादा रहती है. NCP though seems either oblivious or prefers to turn a blind eye. पवार साहब जब माड़ा में अगली बार चुन के गए, पवार साहब ने बहुत अच्छा काम उधर कर दिया. For Sharad Pawar, though 5 years of representing Mada may not compare to his decades-long rule in Baramati, there is a deep-seated feeling in Mada that if not intent, the initiative towards development has certainly been missing. With Jaskirat Singh Baba and Siddharth Safai in Baramati and Madha, Bureau Report for Election Express. And I want to go across to this section where there are lots of young people और जगह जगह हम लोग जाके ये सवाल पूछ रहे हैं कि उस इलाके में नरेंद्र मोदी की कोई हवा है कि नहीं. तो ये पश्चिम महाराष्ट्र है, पवार साहब का गढ़ है. मैं आप लोग ज़्यादातर यहाँ पे यंग लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपके हिसाब से इस इलाके में नरेंद्र मोदी की कोई हवा है कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं? अच्छा, आप लोग जो बोलते हो है, आपके हिसाब से क्यों है नरेंद्र मोदी की हवा? क्योंकि गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा है. कैसे मालूम आपको? मैं खुद जाके आया हूँ अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में खुद घूमा हूँ. क्योंकि वहाँ पे जो रास्ते के लिए रोड टोल पड़ता है वो हमारे बारामती से कई गुना कम है. हमारे बारामती में आने के लिए एक बार देना पड़ता है, वापस जाने के लिए एक बार देना पड़ता है. ऐसे तो पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया. दूसरी बात, एक बारामती शहर में जो नगर पालिका है उसके लिए कम से कम कैनल का पानी 3 महीने तक ना आए तो भी पानी स्टोर करके रखने की जगह है. उसके बाद भी और एक डैम बन रहा है, लेकिन ये जो यहाँ के 22 गांव है वहाँ पे पीने के लिए भी पानी नहीं है. इतनी बड़ी मुश्किल यहाँ पे. खाली कितने और लोग हैं जिनको लगता है कि मोदी की हवा है? किसको लगता है कि मोदी की हवा है यहाँ पे? क्यों, आपको क्यों लगता है कि मोदी पवार से बेहतर है? उनका डेवलपमेंट मॉडल अच्छा है और गुजरात का भी टोटल विकास हुआ है. और हमारे यहाँ का कुछ पानी के लिए 40 साल से हम तरस रहे, तभी भी पानी नहीं आया. पर आपको कैसे मालूम कि गुजरात का कोई डेवलपमेंट मॉडल है? आपने कभी देखा है? हाँ, मैं खुद गया, गुजरात में गया हूँ. वहाँ का रोड अच्छे है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छा है, IT डिपार्टमेंट अच्छा है, इंडस्ट्रियल जोन अच्छे है. आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि कोई यहाँ पे मोदी की हवा नहीं है? क्यों आपको लगता है कि मोदी की हवा नहीं है? मुझे 2 ही शब्द ये कहना है कि भारत के जब राष्ट्रपति बारामती में आए थे, प्राइम मिनिस्टर बारामती में आए थे, तब उन्होंने एक चीज़ कही कि बारामती जैसा मॉडल देश में हो जाए. इतने बड़े व्यक्ति जब हमारा इधर आकर कौतुक करते तो उनको, वो भी नॉलेजेबल लोग हैं कि कुछ तो भी देखा होगा उन्होंने होल सिस्टम में. अच्छा, किसको लगता है कि यहाँ पे कोई मोदी की हवा नहीं है? मोदी की हवा नहीं है. मोदी की हवा है. क्योंकि यहाँ पे मोदी की इसलिए हवा है क्योंकि महायुति ने यहाँ पे जो उम्मीदवार दिया था, ये तो NCP के जो उम्मीदवार है उनसे बेहतर है. क्योंकि वो यहाँ पे मोदी जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं. कैसे मालूम मोदी डेवलपमेंट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 40 साल से जो 22 विलेजेस है वहाँ पे कुछ पानी नहीं आया और हम इसलिए इनसे यही मांगते थे कि पानी दो, हमें पानी दो. लेकिन उन्होंने पानी कुछ भी नहीं दिया हमें, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते रहे. अगले बार आएंगे वहाँ पे बोलेंगे पानी देता हूँ, फिर अगले बार आएंगे. आप लोगों ने कम से कम शरद पवार का काम तो देखा है. आपको क्या मालूम अगर मोदी आएगा नहीं आएगा, कुछ कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा? मोदी का क्यों है? इससे पिछली बार कभी मोदी के आदमी इधर आए थे क्या? शरद पवार इधर जो कर रहे थे वो सब कुछ शरद पवार ही कर रहे थे ना. मोदी इसलिए पिछली बार क्यों आए थे? अब क्यों आए? जब मतदान आया तब क्यों आए? इससे पीछे क्यों, किधर गए थे मोदी सर? आपको लगता है यहाँ पे मोदी की हवा है?
0% हवा, यहाँ पे कुछ लगता नहीं है। जो विकास का मॉडल है, बारामती का मॉडल ऐसा कोई मॉडल नहीं, जहाँ पे कोई भी किसी क्या है बारामती का मॉडल? वो लोग कहते हैं पानी नहीं है। मोदी का मॉडल क्या है? 16% जो डेवलपमेंट चल रहा था वो 8.5% तक, जो आप देखो कि रिजर्व बैंक का रिपोर्ट आया है, व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट, यू अंडरस्टैंड 8.5% अभी डेवलपमेंट का रेट है, जो पहले गुजरात का 16% था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी जाके देखो, इंटरनेट पे सर्च करो, रिजर्व बैंक का रिपोर्ट क्या है जीडीपी का। आपको लगता है मोदी से कोई उम्मीद है? हाँ, मोदी क्या उम्मीद है? मोदी से उम्मीद है, मुझे सिर्फ ये बताना है, पिछले 40 वर्षों से यहाँ पवार साहब की सत्ता है, ये बोलते हैं डेवलपमेंट, मुझे इनको पूछना है कि नेताओं को कि डेवलपमेंट इन्होंने क्या किया? सिर्फ मंदिर खड़े किए इन्होंने, बाकी कुछ किया नहीं। हम पीने को पानी नहीं हमारे इधर, सिर्फ मंदिर खड़े किए हैं। हमको उनको बताना है, सिर्फ आप कुछ मत करो, हमको पीने को पानी दो, हम मंदिर खड़े कर सकते हैं, जनता मंदिर खड़ी कर सकते हैं। Okay, what I want to do is focus now on the tactical alliances that are being shown here in Baramati, because in all of Maharashtra it would seem on the face of it that this is an election between the BJP Shiv Sena on the one side and the MNS Congress on the other, but on the ground there's a lot of secret flirtation that is taking place between the MNS and the BJP Shiv Sena, which is complicating things for Uddhav Thackeray, and also between the NCP and the BJP, because we've seen Praful Patel and we've seen Sharad Pawar both come out and praise Narendra Modi for the work that he's done, say he's not guilty for what happened because the courts haven't found him guilty. And we've seen Narendra Modi go out and campaign extensively only against the Congress candidates and not against the NCP candidates. Here is an Election Express report on the secret alliances being forged on the ground in Maharashtra. Jai Hind, Jai Maharashtra. In Maharashtra, decades-old political alliances are showing signs of strain, and a realignment of political forces after the polls cannot be ruled out. Election Express found out that even before the election dates were announced, speculations were already rife about secret political alliances in the state. The rumours were given fire by Lok Satta newspaper's report on a secret meeting between BJP's PM nominee Narendra Modi and NCP chief Sharad Pawar, leading to conjectures being drawn of a possible post-poll alliance between the two. NCP could be BJP's hidden ally or some kind of a reserve force. However, Sharad Pawar brushed off the matter, saying that the meeting was in fact between an agriculture minister and a chief minister. But what added fuel to the fire were these statements. We all have faith in the judiciary, and therefore we should respect that. Say tomorrow I make an allegation against you that you're a murderer, and the court proves it to me that no, you are not a murderer. Then I can't keep screaming loud. I mean, eventually we all have faith in the justice system of this country. Meanwhile, Sharad Pawar sought to dispel these speculations. अहमदाबाद में जो दंगल हो गई, फसाद हो गए, इसकी जिम्मेदारी उनको तो लेनी पड़ेगी, एज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो महाराष्ट्र लेवल पर 15 साल से कांग्रेस एनसीपी मिलकर बीजेपी सेना को दूर रखने के लिए कामयाब हो रही है। भारत माता की जय। But when Modi started campaigning in Maharashtra, he chose only the areas from where Congress has fielded candidates. As of now, out of Modi's 7 rallies in Maharashtra, Amravati is the only place from where NCP candidate is in the fray. However, in recent times, Pawar has repeatedly hit out at Modi. निवडणूक संपेल, त्यांचा पराभव करू आणि चांगल्या कुठं हॉस्पिटल असल्याचं बघू आणि त्याच्यावरती लक्ष देऊ. There has also been speculation about the understanding between the Sena's arch-rival Maharashtra Navnirman Sena and the BJP. Interestingly, in Mumbai, Raj Thackeray has declared 6 seats against Shiv Sena candidates. नरेंद्र मोदींना पाठिंबा देतील, पण आम्ही एनडीए जाणार नाही. Not only that, even outside Mumbai, MNS has fielded candidates against Sena only. And the party chief Raj Thackeray has repeatedly showered praise on BJP's PM nominee, declaring his full support for him. मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, इसकी पहली घोषणा तो मैंने की थी और वो भी गुजरात में की थी. Tension between the Shiv Sena and the BJP continue to simmer despite the public display of bonhomie. To make matters worse for this alliance, MNS President
Raj Thackeray has announced his party's support to BJP leader Gopinath Munde, who is attempting to retain his Bid Lok Sabha seat in Maharashtra. So whether or not Maharashtra will see political realignment will only become clear at the time of government formation. With Sahil Joshi, Nilesh Patil and Swapnil Saraswat in Mumbai, Shujoy for Election Express. Well, clearly a secret alliance being shewed to try and help out the BJP. ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी और एमएनएस की यहाँ महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग चल रही है, लड़ते नहीं है? मतलब आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे में आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना, उद्धव ठाकरे में ज्यादा दम है कि राज ठाकरे में? राज ठाकरे। आपके हिसाब से बीजेपी के लिए बेहतर कौन है? मोदी। नहीं, बीजेपी के लिए पार्टनर बेहतर कौन है, उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे? ऑब्वियसली राज ठाकरे। आप लोग बताइए, आप बीजेपी को और कौन सपोर्ट करता है? आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आप बताइए आपके हिसाब से बीजेपी के लिए बेहतर पार्टनर कौन है, राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे? राज ठाकरे। क्यों राज ठाकरे क्यों बेहतर है? उनका और मोदी का बोलने का तरीका सेम है, वो दुखनों पे बोले तो झकमों पे वार करते हैं। क्या बात है? एक सेकंड, I want to go back once again to the other side to understand from them because there are some MNS people over here. MNS के जो सपोर्टर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से बेहतर है राज ठाकरे। आपको लगता है कि एमएनएस का बीजेपी का टाइप हो जाए तो बेहतर है? नहीं, हमको किसके साथ टाइप करने की जरूरत नहीं। हमने मोदी जी को सपोर्ट किया है, बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया है। हमारे राज साहब का जो है, उनके हिसाब से जो मोदी साहब ने गुजरात में जो कुछ डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने 5 साल पहले बनाया था कि मोदी साहब इस देश का पीएम बनना चाहिए। बाद में बीजेपी में तय कर दिया कि मोदी को पीएम करने का। नहीं, तो ये बताइए यहाँ पे शिवसेना के सपोर्टर कौन है? आप शिवसेना के सपोर्टर हैं। यहाँ तो सब लोग बोल रहे हैं उद्धव को साइड करो और राज ठाकरे के पास जाओ, आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? वो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को राज ठाकरे को हाथ मिलाना चाहिए और उद्धव ठाकरे को बाय बाय बोलना चाहिए। जो काम करने वाला है उसको ही सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर मोदी जी काम करने वाले हैं, अगर मोदी जी डेवलपमेंट करने वाले हैं, अगर मोदी जी बोले कि आप हमारे साथ मत आओ, फिर भी हम जाने वाले हैं। क्यों? आप डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। नहीं, पर यहाँ तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे में दोस्ती बढ़ रही है, उद्धव ठाकरे को तो पेट में दर्द हो रहा है। अभी देखो, ये राजनीति में तोड़ो फोड़ो मारो, ये नीति चलती है। यहाँ भी बारामती में भी गांव गांव में एनसीपी की 2 गट्स है, समझो, गांव गांव में एनसीपी के 2 गट्स है। मैं बोलूं या नहीं बोलूं? अभी देखो इधर की राजनीति कैसी चलती है। एनसीपी के 2 गट होते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं। बाद में लोग, यहाँ के लोकल के लोग, जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो लोग जाते हैं चुन के, वो एक अपनी बॉडी बनाते हैं ग्राम पंचायत की। वो अच्छा, यहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर्स कौन है? आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। सब लोग वहाँ पे जो लोग थे वो कह रहे थे कि बीजेपी को राज ठाकरे का हाथ पकड़ना चाहिए, उद्धव ठाकरे को बाय बोलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी संपूर्ण देश में नरेंद्र मोदी का प्रभाव है, उसके कारण सब ये देशवासी है नरेंद्र मोदी के बाजू में जा रहे हैं कि उनमें सब देश की भलाई करने की अंतर्गत भावनाएं उनकी। आपको क्या लग रहा है कि क्या राज ठाकरे का हाथ मिलाना चाहिए, उद्धव को छोड़ना चाहिए? लंबी रेस का घोड़ा राज है क्या? बीजेपी, शिवसेना और राज ठाकरे का एजेंडा एक ही है, जो ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं। पर राज और उद्धव की तो बनती नहीं है। अगर बनती नहीं है, पर उनका मकसद एक ही है कि एक चूज करना, कौन बेहतर है? हम दोनों में से एक नहीं चूज कर सकते, हम दोनों को चूज करेंगे। नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम राज ठाकरे को भी संग लेंगे और शिवसेना को भी संग लेंगे। अगर शरद पवार भी अभी कह रहे हैं शादी में एक बीवी होती है ना, ये थोड़ी कि 2-2 बीवी मांग। ये बीबी का काम नहीं है। हमारे 5 पांडव है हम महाराष्ट्र में। हम बीजेपी है, शिवसेना है, राष्ट्रीय समाज पक्ष है, महायुति। पर ये तो पति पत्नी और वो का गेम चल रहा है। बीजेपी और शिवसेना का महाराष्ट्र में गठबंधन है, वो एनडीए का पुराना साथी है। इसलिए बीजेपी और शिवसेना है, इनका जो गठबंधन है, इनमें उद्धव ठाकरे प्रमुख है। इसलिए बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ जाती है, राज ठाकरे के साथ नहीं जाती। दिस इज द हार्ट of India's sugarcane belt. Earlier in the day,
we went to one of the biggest sugar mills in Western Maharashtra to get a sense of what those involved at different stages of the sugar mill process. Those who were laborers, those who were the farmers bringing their sugarcane to the factories, those who were involved in working in the factories, and those who ran these cooperatives, what do they think about the battle for your vote 2014? Here is an Election Express report filed earlier in the day from a sugarcane mill inside Baramati. We are currently at the Chhatrapati Sugar Cooperative Factory here in Baramati, and we've got farmers who love Sharad Pawar, and then there is the SSS of Raju Shetty, which is challenging Sharad Pawar's domain in his own constituency. Let's speak to these farmers to understand what their issues are and where they want to lean in the battle for your vote 2014. I want to begin by asking first the chairman of this cooperative factory. अब की बार हम देख रहे हैं कि SS एक महायुति खड़ा हुआ है शरद पवार के खिलाफ, जिसमें दलित ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें किसान ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, बीजेपी भी है, शिवसेना भी है. आपको लग रहा है कि अब की दफा जो पवार साहब का गढ़ है वहाँ पे खतरा है पवार साहब को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. यहाँ पे कल ही वोटिंग, यहाँ पे बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो कल ही पूरा खत्म हो गया है और बहुत अच्छे परसेंटेज में लोग बाहर आके कल यहाँ पे वोटिंग किया है. और यहाँ पे जो एनसीपी और कांग्रेस की जो कैंडिडेट है सुप्रिया सुले, वो भारी मतों से यहाँ से आने वाले जो 16 तारीख को काउंटिंग है उसमें जीत के आएगी. इसे यहाँ के लोगों को पूरा विश्वास है. नहीं, पर हम लोग देख रहे हैं कि अजीत पवार कहते हैं कि आपने मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं आपका पानी सप्लाई काट दूंगा. कैमरे पे पकड़ा, देश भर में खबरें चल रही हैं. आपका नेता है, आप भी एनसीपी से, ये कोई तरीका होता है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब सारी अफवाहें हैं. अफवाहें नहीं, टेप देखा हमने. ऐसी नहीं है. अगर दादा वहाँ पे गए थे तो जहाँ पे जैसे जो लोग जमा हुए हैं वहाँ पे जो कोई बातें रहती है थोड़ी चलती है, लेकिन ऐसा कोई धमकी वगैरह दादा ने नहीं, हमने टेप पे सुना. वो एक फौजी है, वो बोल रहा है कि आपने 2006 में बोला था पानी आएगा, 2014 हो गया, पानी नहीं आया, तो पवार साहब बोलते इसको हटाओ हटाओ. ये क्या बात है? परसों जो वोटिंग से पहले भी रैली हुई उसमें भी दादा ने कहा है कि विधानसभा के चुनाव से पहले अगर पानी वहाँ पे नहीं आया तो मैं आपके यहाँ पे वोट भी मांगने नहीं आऊँगा. वहाँ पे काम चालू है और विधानसभा इलेक्शन से पहले वहाँ पे जरूर पानी आएगा, ऐसा दादा ने वहाँ पे उस दिन कहा है. आप रहिए हमारे साथ. हमारे यहाँ पर SSS राजू शेट्टीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स बॉडी, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर आल्सो विद अस. ये शरद पवार का गढ़ है और लोग कहते हैं कि चूंकि ये शरद पवार का गढ़ है, यहाँ पर उनको हराना बहुत मुश्किल है. आप लोग महायुति खड़ा कर सकते हैं लेकिन पवार साहब को बारामती में टक्कर देना बहुत मुश्किल है. ऐसी बात नहीं है. ये इस देश में इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हारी थी, सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ से चुनाव हारे थे. पवार किस बात की? पवार भी यहाँ से हार सकते हैं. इन्होंने यहाँ के लोगों का काम नहीं किया है. यहाँ पानी नहीं ठीक से मिला, जो किसान बीज बोते हैं उस फसल का पैसा नहीं ठीक से मिल रहा है. ये किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है. कि अब ऐसा लग रहा है कि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो चेयरमैन हैं जैसे आप हैं, वो सब पवार साहब के साथ हैं, लेकिन जो गरीब किसान है महाराष्ट्र का, बारामती के इलाके का, वो अब पवार साहब के साथ नहीं है. उसको लगता है कि ये बड़े कोऑपरेटिव्स को तो फायदा पहुंचा रहे हैं, किसानों को नहीं पहुंचा. ऐसा नहीं है. जब से आप देखिए आज पवार साहब इस देश के कृषि मंत्री बनके पूरे 10 साल हो गए. 10 साल पहले किसानों को 1 टन के लिए भाव कितना मिलता था, मतलब जो रेट देते हैं वो कितना था. आज करीब करीब हम लोग फाइनल पेमेंट 2500, 2600, 2700, 2800 जो हमारी जो फैक्ट्री है इसने पिछले साल का पेमेंट 2570 2575 किया है. अच्छा, ये बताइए कि चर्चा हो रही है कि देश में जगह जगह नरेंद्र मोदी की हवा है, तो ये जो बारामती का इलाका है, शुगर केन का इलाका है, पवार का गढ़ है, यहाँ पे भी कोई मोदी की हवा है कि नहीं है? बहुत है. नरेंद्र मोदी का बहुत आता है. बहुत है. नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा यहाँ पर भी है. लोगों ने पवार साहब को, एनसीपी को बहुत साल देख लिया, अब लोग बदलाव चाहते हैं. आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की हवा. नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पे काम क्या किया है, तो हवा कहाँ से चलेगी? अरे आप पवार साहब के बारे में बोलते हो. अभी आपने जो सवाल उठाया कि पानी के बारे में, ये आज जो अगले सीजन आने वाला है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में 230 लाख मेट्रिक टन गन्ना है. उसका क्रशिंग कैसे करने का ये फैक्ट्री के पूरे फैक्ट्री के
सामने एक बड़ी समस्या है और महाराष्ट्र में करीब करीब 800 तो 900 मेट्रिक टन गन्ना अगले साल है। तो पानी नहीं आया तो कहाँ से हुआ है ये सब? तो आप लोगों को लग रहा है कि मोदी की हवा है कि नहीं? वो लोग बात कर रहे हैं। नहीं, वो पवार साहब की हवा है। पवार साहब को घर घर पे समझ। अरे आप बोलो यहाँ पे क्या काम है? वो पवार फैमिली है ना, पवार फैमिली सिर्फ बारामती में एक सभा लेती है। पवार साहब फक्त सिर्फ एक सभा लेते हैं लोकसभा मतदार में, सिर्फ एक सभा। आप पवार साहब ने इस बारामती लोकसभा मतदार संघ में 10 सभा लिया, 10 टेंशन में किसी के वास्ते 10 सभा लिया। और उसके अभी उसके पुतना है ना उप मुख्यमंत्री, इसने 4-4 किलोमीटर एक ही गांव में हर्षवर्धन पाटिल ने सभा ली, एक ही गांव में, और 2 किलोमीटर में अजित पवार ने सभा ली। टेंशन में लग रहा है हमको क्या 10 साल में क्या मोदी पानी देने आए थे क्या इधर? आपसे बात करने के लिए आपने हमें यहाँ पे आने दिया। आप लोगों की शुगर फैक्ट्री के बीच में काम चल रहा है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। With that report, we end our broadcast tonight, being brought to you from Baramati in Western Maharashtra. It's been a long week for the crew of the Election Express. We started from Gujarat, made our way down to Mumbai, and are signing off from Sharad Pawar's fiefdom of Baramati. Through the week, the Election Express will be traveling all the way down south to Chennai, where elections will be held on the 24th of April. We look forward to seeing you at 9:30 p.m. Monday night from the Marina Beach in Chennai. I hope you're having a good time watching this broadcast as we bring you real people and their real issues, giving the real voters of India their right to be heard. Away from the usual faces you see on television screens every night, being where the real action is. This is where elections are being won, fought and lost, not on television studios, and we are giving you a seat right in the middle of the action. Look forward to seeing you Monday night. Signing off on behalf of the entire crew of the Election Express. See you at 9:30 Monday.